Hello everyone, this is Abhay. I will be hosting your session today, and we will wait for a few seconds to let other join, and then we'll start. Okay, so let's start this session. Today we will be talking about these things. The first one is MAC address, also known as media access control. Okay, हम इसे physical address भी बोलते हैं. We call it physical addresses, and then we call it. Next we have broadcast domain. We will see what is the broadcast domain, and after that we will see how the switch learns MAC address, and what is the MAC address table and how it uh, created on the switch, and I will show you the details of the MAC address table in Packet Tracer with little details, and next after that we will see the ARP, address resolution protocol. Okay, in IP version 4 we call it ARP, but when we deal with the IP version 6 we call it never discovery protocol, NDP. And after that we will see the DSCP. DSCP stands for dynamic host configuration protocol.
जनरली हम लोग DHCP यूज करते हैं डायनामिकली IP एड्रेसेस को असाइन करने के लिए टू एंड पॉइंट्स टू इंडिविजुअल यूजर्स. Suppose if I talk about a little detail for the DHCP, so मैं सिनेरियो क्रिएट करता हूँ यहाँ पे. So let's say we have an network, a kind of a LAN. So we have a router here and say switch added है यहाँ पे. This is a switch, this is a router, and we have 3 or 4 PCs like that. आपका small network है ये. Okay, and we have 3 PCs connected to this switch. ये PC1 है, PC2, PC3. Okay, this is the topology and this is our LAN. So जनरली हम जब नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हमको इंडिविजुअली PCs पे जो है IP एड्रेसेस को असाइन करना पड़ता है इफ वी आर नॉट यूजिंग द DHCP. अगर हम DHCP की सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे हैं, इस प्रोटोकॉल को यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो पहले हम डिसाइड करते हैं हमें किस तरह का नेटवर्क डिजाइन करना है, फिर उसके IP एड्रेसेस को जो है कंफर्म करते हैं. व्हाट इज द सबनेट आईडी, सबनेट आईडी क्या होगी उसकी नेटवर्क की. ठीक है, जिसमें आप प्लान क्रिएट कर रहे हो. और जनरली स्विचेस को आपको IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं करना पड़ता बिकॉज स्विचेस के जो वर्क है वो मैक एड्रेस बेस्ड होते हैं. आपको जनरली बस उनको प्लग एंड यूज होता है क्योंकि सिस्को के जो मोस्टली स्विचेस होते हैं वो इनिशियली रेडी टू यूज होते हैं. आपको उनको कोई भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता. सो इंडिविजुअली जाको आपको PC1 पे, PC2 पे, PC3 पे IP एड्रेसेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं. और भी डिटेल्स होती हैं. लाइक अगर आप PC पे जाते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा. यू हैव टू पुट द IP एड्रेस फर्स्ट. This will be the one address. Then you have to put the default gateway. Then you have to put other details if necessary, like DNS and all the things. So ये सारी details जो आप put करते हो आपको manually put करनी पड़ती है अगर हम लोग DHCP यूज नहीं कर रहे हैं. If we are not using the DHCP. So suppose कीजिए कि आप small network environment में यूज कर रहे हो तो DHCP आप नहीं भी यूज करते हो तो आप manually इनको assign कर सकते हो IP एड्रेसेस और ऑडिट साइड डिटेल्स. बट अगर आप लार्ज नेटवर्क में काम कर रहे हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सो सिनेरियो में आपके पास हंड्रेड्स ऑफ PCs होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं. देन यू हैव टू assign all the IP addresses manually to every endpoint, to every PC. So that will not be very appropriate and very efficient as a network administrator. So for that we use DHCP. So we will discuss this with the details in the session. Okay, so these are the key points that we will be discussing today, and I will show you some of the example in the packet tracer how we actually do. If you are going to enroll in the CCNA sessions, then you will be doing the lab with the network packet tracer, okay, designed by the Cisco. So I will show you a bit of that too. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं MAC एड्रेस. So MAC address also called the physical address. Okay. Generally हम लोग MAC address को जब denote करते हैं तो it's in the hexadecimal. We have certain things like IP version 4. We write in decimal form, a general number that we use to calculate in the mathematics. But MAC address आप डेसिमल में यूज नहीं करते हो. मैक एड्रेस के लिए आपको हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं जिसमें आपके 0 to 9 and 10 11 के आसपास में आपके ABCDEF तक वैल्यूज होती हैं. सो इस तरह के नंबर सिस्टम से आप इनको रिप्रेजेंट करते हो. इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ सकते हो. आई विल बी नॉट डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स अबाउट द नंबर सिस्टम हियर. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है. यू कैन सी हियर 00:FF:FF::AB::BB::A. This is the example of a MAC address. जैसे MAC एड्रेस का मैंने फुल फॉर्म में बताया था आपको, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. Okay, we also call it the hardware address. They have many names like physical address, hardware address and media access control addresses. So इस तरह से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं.
in the form of hexadecimal numbers. अगर आप IP version 4 की बात करते हो तो उनको हम लोग डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं. And we can also represent IP version 4 in the binary numbers, as you see in the previous sessions. Like we have 8 bits in the different octets, and we have 4 octets. So it's like that. So what the MAC address do with our network? Okay, so let me give you the idea why actually we need the MAC address. Okay. मैक एड्रेस आपका जो वर्क होता है वो करता है डेटा लिंक लेयर पे, इफ यू आर अवेयर ऑफ द OSI मॉडल. ठीक है. इट रिप्रेजेंट द फिजिकल एड्रेस ऑफ डिवाइसेस. आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो. जनरली स्विच जो होता है आपका, जो डिवाइस होती है, स्विच के पास एक टेबल होती है, इसको कहते हैं मैक एड्रेस टेबल. वहाँ पे इनसे जुड़ी हुई जो भी डिवाइसेस होती हैं, जैसे पीसीज का एग्जांपल ले लीजिए आप, या किसी भी डिवाइस का, जो डिवाइसेस से एडेड होती हैं उनका ये डेटा जो है यहाँ पे सेव करता है डायनामिकली. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में at the initial point switch did not have any data about the MAC address, and every devices, if you talk about the in the perspective of networking, every device have kind of an interface, or you can say in simple form port. So it's like switch have 24 ports, 48 ports, 64 ports. So every port has a different name and designation. So सारे ports के name होते हैं अपने, और अपने जो है कोड्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए. तो जो पीसी जिस भी पोर्ट्स पे कनेक्टेड होते हैं, स्विच के पास उनकी एक टेबल होती है. टेबल इस तरह से दिखती है. लेट मी शो यू द टेबल हियर. क्या क्या डिटेल्स होती हैं उसमें. सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो टेबल इस तरह से होती है. यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, इंटरफेस होते हैं, उनका नेम होता है. यहाँ पे आपके होते हैं मैक एड्रेसेस. यहाँ पे मैक एड्रेस सेव होते हैं, यहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव पोर्ट्स होते हैं. ठीक है. सो दैट्स हाउ स्विच does know about the MAC addresses of every port. Like switch के पास इंफॉर्मेशन होती है कि ये मेरा फास्ट इथरनेट का पोर्ट है, एंड ये डिवाइस जिसका मैक एड्रेस, जिसका फिजिकल एड्रेस ये है, वो इस एड्रेस से इस पोर्ट के बेसिस पे कनेक्टेड है. एंड स्विच हैव लॉट्स ऑफ ports. Like if I talk about 2960 series switch, तो 2960 especially we have 26 ports. 24 ports are the fast Ethernet ports, and 2 ports are the gigabit Ethernet for the faster speeds. So we have 26 ports. So जब भी आप इन डिवाइसेस को ऐड करते जाते हो, वैसे वैसे क्या होता है, टेबल में उनकी एंट्रीज, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो जो है एंट्रीज फुल होती जाती हैं. इनिशियली आपका मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी होता है. ओके. मैक एड्रेस टेबल आपके डिवाइस ऐड करने से वो फिल नहीं हो जाता, वो एम्प्टी होता है. वो ऐड तब होता है जब आप उन डिवाइसेस से जो आपने स्विच से कनेक्ट किए हुए हैं, उनसे अगर आप कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हो. इनिशिएट करने के बाद जब आपकी जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो रिक्वेस्ट करती है स्विच को, जैसे ट्रैफिक उसके पास पहुंचता है वो तुरंत क्या करता है, अपनी टेबल में वो एंट्री सेव कर लेता है. तो जैसे ही कोई इनकमिंग फ्रेम होता है जो पर्टिकुलर पीसी से आपके स्विच में आ रहा होता है, वो तुरंत उस फ्रेम के साथ में सेव कर लेता है. सेव कैसे करता है, जिस पोर्ट से उसकी एंट्री होती है उस पोर्ट का नेम लिखता है वहां पे, पोर्ट नेम इस साइड पे टेबल के. दूसरी साइड पे जब भी कोई भी डिवाइस आपकी रिक्वेस्ट करती है तो दे हैव सम काइंड ऑफ एड्रेस. बेसिकली दे हैव द फिजिकल एड्रेस. तो फिजिकल एड्रेस साथ में सेंड कर रहे होते हैं एज अ सोर्स पॉइंट, तो वहां पे वो मैक एड्रेस सेव कर लेते हैं. सो दैट्स हाउ दे मेड द टेबल, एंड इट इज डायनामिक, इट इज नॉट स्टैटिक. ये बदलती रहती है. जैसे जैसे इनिशिएट होता है कम्युनिकेशन, वैसे वैसे चीजें एस्टेब्लिश होती जाती हैं. और सेम एज अ ARP टेबल. ARP टेबल हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस. ARP टेबल इज ऑन राउटर. इसको राउटर होल्ड करता है ARP टेबल को, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल जो होती है. एंड मैक टेबल आपकी जो ये होती है, ये स्विच पे सेव्ड होती है. ठीक है. सो दैट्स हाउ दे डील विद दैट. मैं एक सिनेरियो भी बताऊंगा आपको कैसे जो है कम्युनिकेट करते हैं विद द ARP विद द मैक एड्रेस, एंड व्हाट आर देयर यूजेस. So this was the basic idea about the MAC address. Now let's see what are the logics behind learning the MAC address. So generally switch has 2 or 3 functions. Like first function is you can say the switching the data. Okay, switching the data is the first function. But if I talk about the second function is to learn the MAC address.
अगर स्विच के पास मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कौन से पोर्ट पे कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस क्या है, तो वो डेटा को सेंड नहीं कर सकता, उसे फिर वो ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल फेज में जब मैक एड्रेस पूरी तरह से क्रिएटेड नहीं होती है, तो इनिशियली क्या करते हैं, वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे इसके पहले अगर मैं इसके प्रीडिसेसर डिवाइस की बात करूं, हब की बात करूं, तो हब में क्या सिनेरियो होते हैं, वो सिंपली जो भी रिसीव करता है किसी पर्टिकुलर लिंक से, दूसरे डिवाइसेस जो भी एडेड होते हैं उससे, उनको वो सिंगल सिंगल कॉपी जो है करके सेंड कर देता है। सो इनिशियली आपका स्विच भी हब की तरह वर्क कर रहा होता है, बिकॉज इट डजंट हैव द मैक एड्रेस। ठीक है, जैसे जैसे जो है टेबल अपडेट होती जाती है, जैसे जैसे एंट्रीज बढ़ती जाती हैं, एंट्रीज के साथ साथ उनके जो है मैपिंग होते जाते हैं। और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उसके साथ में कि इसे इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को सेंड करना है, तो ये क्या करता है, ये स्विच आपका पर्टिकुलरली उस केवल इंडिविजुअल को सेंड करता है, बाकी सारे पीसीज को सेंड नहीं करता। सो दैट्स हाउ दे डील विद द मैक एड्रेस, एंड दिस इज द लॉजिक। और किस लॉजिक से ये लर्न करता है मैक एड्रेस को? लॉजिक केवल सिंपल सा है कि जो भी जो है पोर्ट्स पे इनकमिंग फ्रेम होते हैं, तो जब भी कोई इनकमिंग फ्रेम होता है जो स्विच के पास आ रहा होता है किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट से, उसके साथ में उसका सोर्स मैक एड्रेस भी आ रहा होता है। सी आई हैव लिस्टेड अ लाइन हियर, स्विच बिल्ड्स द एड्रेस टेबल बाय लिसनिंग टू द इनकमिंग फ्रेम। आउटगोइंग फ्रेम नहीं, इनकमिंग फ्रेम, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, इनकमिंग फ्रेम में। और जब भी कोई इनकमिंग फ्रेम आता है तो उसमें जो पीसी होते हैं वो अपना सोर्स एड्रेस मींस मैक एड्रेस सेंड करते हैं साथ में, तो वो क्या करता है, वो सेव कर लेता है उस चीज को। ओके, एंड जब वो सेव कर लेता है उसके बाद वो अपने जो है टेबल में वो एंट्री अवेलेबल होती है। और उसके बाद जैसे ही दूसरे पोर्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जैसे कि सपोज कीजिए कि वी हैव अ स्विच हियर एंड दिस इज द PC1, दिस इज द PC2, PC1 PC2। इफ PC1 सेंड्स द ट्रैफिक टू PC2, तो इन्फॉर्मेशन ऐसे रिसीव होगी, स्विच के पास इस वाले पोर्ट पे इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। तो पहले क्या करेगा स्विच, इस पर्टिकुलर PC1 के मैक एड्रेस को इस पोर्ट नंबर के साथ में अपनी मैक एड्रेस जो है उसकी एंट्री में सेव कर लेगा। देन अगर टू इसको रिप्लाई करता है तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी रिसीव होगी इनकमिंग फ्रेम, और इसका भी एड्रेस जो है ये वापस से सेव कर लेगा। अगर टू इसको रिप्लाई नहीं करता है, इफ इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, वन फ्रॉम टू, देन टू का एड्रेस यहाँ पे सेव नहीं होगा, ओनली वन एंट्री यहाँ पे सेव होगी जो कि PC1 की होगी। सो दैट्स हाउ इट डील्स विद द इनकमिंग फ्रेम एंड मेक्स द मैक एड्रेस टेबल। सो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड की हुई, इट विल बी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज अ स्विच हियर, this is a switch device and there are 4 PCs, the PC1, PC2, 3 and 4. Fred, Barney, Wilma and Betty are connected to the switch, and these are the names for the interface. F means fast ethernet, so these are the names, and the 01 is for the particular array addressing, because सारे interface के नाम same नहीं हो सकते। So we have 24 ports in 2960 series switch। तो 24 पोर्ट्स के लिए अगर वो फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं तो उनमें एंट्री इस तरह से हो सकती हैं 0/1, 0/2, 0/3, समथिंग लाइक दैट, और 1/0, 2/0, 3/0। सो इस तरह से एंट्रीज हो सकती है वहां पे। सो यहाँ पे आप देखो स्विच है, इससे कनेक्टेड है, और आपको पता है यहाँ पे कि जो आपका PC1 का एड्रेस है, मैक एड्रेस ये लिखा हुआ है। इट्स एन एग्जांपल, इस तरह से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द मैक एड्रेस। यहाँ पे आपकी जो टेबल है इनिशियली वो एम्प्टी है, ठीक है, और उसके बाद स्टेप 1 और स्टेप 2 में आपके टेबल्स जो है फिल हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कैसे टेबल्स को फिल कर जो है होते हैं, किस तरह से एंट्रीज हो रही है वहां पे। इन दिस इमेज यू कैन सी देयर आर 2 स्टेप। द फर्स्ट इज स्टेप 1, जब फ्रेड क्या करता है, अपना पहला फ्रेम किसको सेंड करता है, बार्नी को। जब ये फ्रेड PC जो है ये फ्रेम सेंड करता है बार्नी को, दिस इज द स्टेप 1 हियर। यहाँ पे इनकमिंग होता है स्विच के पास, जैसे ही रिसीव होता है यहाँ पे, तो यहाँ से वो सेव कर लेता है आउटपुट। यहाँ पे जो पोर्ट है इसका, इसने सेव कर लिया, दिस इज द फास्ट इथरनेट 0/1, दिस इज द पोर्ट नंबर, इंटरफेस नंबर, एंड दिस इज द एड्रेस। बिकॉज जैसे ही फ्रेड ने रिक्वेस्ट किया होगा स्विच से,
इनकमिंग फ्रेम के साथ में वो एड्रेस साथ में आया होगा सोर्स का और उसने सेव कर लिया होगा। नाउ स्टेप 2 में क्या कर रहा है कि बार्नी वापस से उसको रिप्लाई करता है। Now Barney replies to the phrase to the thread here in the second step। रिप्लाई इस तरह से मूव होता है जैसे रिप्लाई आता है इसके पास। नाउ इन दूसरा इनकमिंग फ्रेम है ये जो कि बार्नी की साइड से आया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए इंटरफेस का नेम क्या है F02 हियर आल्सो F02 और इसके साथ में 02002222 एंड 2222 दीज आर द मैक एड्रेस सेव्ड हियर इन द टेबल। और एक और चीज नोटिस किया होगा आपने कि अभी विल्मा और बेटी से कोई भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ है। ये दोनों आपस में रिक्वेस्ट और रिप्लाई कर रहे हैं इस तरह से। सो इसलिए इनकी कोई भी एंट्री नहीं है। आप ये वाला मैक एड्रेस टेबल और ये वाला मैक एड्रेस टेबल आप इनमें जो है नहीं देख पा रहे हो बिकॉज they did not started any kind of communication। So that's how the Mac learns the switch learns the MAC address। Okay, and अगर आप डिवाइसेस के CLI पे जाते हो कमांड लाइन इंटरफेस पे जहाँ पे स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप स्विचेस को मेंटेन कर सकते हो और जो डिटेल्स हो रही होती हैं एक्चुअल डिवाइस पे जो स्विच है आपका उस पर आप देखना चाहते हो तो आप एक कमांड दे सकते हो वहाँ पे। दिस इज द कमांड हियर जिससे कि आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हो। ये उसी तरह से ये डिवाइस के आप जो है कॉन्फ़िगरेशन CLI में होते हो आप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो सारी चीज़ों को और देख भी सकते हो, मॉनिटर भी कर सकते हो। सो जनरली जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं वो अपने कॉन्फ़िगरेशंस CLI से ही जो है कर पाते हैं। और ये आपका कमांड है सो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक। इस तरह से कमांड देने पे अगर वो पर्टिकुलर डिवाइसेस जो यहाँ पे हैं पहले से क्रिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं, उनकी लिस्ट देखो इस तरह से बन के आया हुआ है। दीज आर द VLANs, वर्चुअल लैंस। We do not talk about this right now। So we have the different MAC address here like 1 2 3 4 5 6 and 7 MAC address means 7 devices are connected और वो devices जो connected हैं वो dynamically यहाँ पे insert हुई हैं stable में means switch ने उसको learn किया है और उनके respected ports यहाँ पे दिए हुए हैं means 18339D 7B 0E 9A is connected on the gigabit Ethernet 0/1 port। So you can see the table like this here। So let me show you the example in the packet tracer here। I have created a simple LAN here जिसका सबनेट आईडी आपका ये है 192.168.0.0। यहाँ पे PCs को मैंने दिया हुआ है IP एड्रेसेस आप देख पा रहे हो यहाँ पे। दिस इज फॉर द PC0, फॉर द PC1, PC2 एंड PC3। यहाँ पे मैंने PCs को भी IP एड्रेस इनपुट नहीं दिया मैंने आपको जो है दिखाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्विच के पास जाता हूँ, ये आपकी स्विच डिवाइस है, दिस इज द राउटर। ओके, स्विच पे क्लिक करते हो आप तो मैं बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। CLI पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको मैक एड्रेस टेबल दिखाता हूँ। इनिशियली ये एम्प्टी होती है तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सो मैक, दिस इज द कमांड एंड डायनामिक। सी देयर इज ओनली वन एंट्री हियर। ये जो आपकी पहली एंट्री है ये कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दिस इज द स्विच, दिस इज द फास्ट इथरनेट 0/1 एंड इट इज कनेक्टेड टू द राउटर एंड दिस इज द एंट्री फॉर द राउटर। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि PCs का कोई भी आपको डिटेल्स नहीं मिल रहा है बिकॉज अभी PC को मैंने IP एड्रेसेस प्रोवाइड नहीं किए हैं और IP एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद जब कम्युनिकेशन आप एस्टेब्लिश करते हो तब आपको उनकी एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। सो लेट मी डू दिस। मैं यहाँ पे इनकी एंट्रीज पुट कर देता हूँ IP कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। अभी मैं DHCP में इसके बारे में डिस्कस करूंगा वन बाय वन कि कैसे आप डिटेल्स को पुट करते हो। जनरली मैं यहाँ पे बस IP एड्रेस पुट कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले से वहाँ पे लिख रखे हैं and I have to put the default gateway। Default gateway is the address where you can tell your device to go to connect with different network। It's a kind of a default gateway। आपका जो राउटर का ये वाला इंटरफेस होता है इसका जो एड्रेस होता है उसे डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस बोलते हैं। This is the 192.168.0.1। So now I have set the IP address here और इसे अगर चेक करना चाहते हो तो वी कैन यूज पिंग। you all guys know ping I think। So we can ping the router from the PC। Now we are at the PC0 and we are accessing this PC
and in this PC we are at the terminal of the PC0, and now we are trying to connect with the router, means we are just checking the connectivity by the ping 192.168.0.1. This is the IP address of router. Okay, so let me hit the enter here. See, we have received the reply 0% loss, means we are totally connected to the network. Let me do the ping from here to, यहाँ पे मैंने अभी कोई भी IP एड्रेस से सेट नहीं किया हुआ यहाँ पे स्टैटिकली, ठीक है। सो दोबारा से यहाँ पे पिंग करते बिना IP एड्रेस सेट किए हुए, ठीक है। पिंग 192.168.0.1। सी, ये आपकी इंफॉर्मेशन जो मैंने पिंग किया हुआ है ये कुछ देर में फेल हो जाएगा, बिकॉज हमने अभी IP एड्रेस पुट नहीं किया है। सो जनरली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैनुअली डिवाइसेस को पुट कर रहे हैं। जब हम इसी तरह से DHCP के सर्वर्स को जो है अलाउ करते हैं सर्विसेज को, तो वहां पे आपको मैनुअली पुट नहीं करना पड़ता। वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली डायनामिक फॉर्म में IPs को पर्टिकुलर PCs को असाइन कर देते हैं। सी हियर यू कैन सी द 100% लॉस। ओके, so let me do the configuration here too. Just for this PC, it has the IP address 192.168.0.3, and the default gateway will be the same as before, 192.168.0.1, and now we are good to go. And now we can ping this PC to this PC also. So let me check ping 192.168.0.2. See, we are receiving the reply. I am at the PC1 and I am pinging this PC here. So अभी आपने एंट्री देखी थी जो मैक एड्रेस टेबल में, वहां पे कुछ सिंगल एंट्री थी जो कि केवल राउटर के इस इंटरफेस की थी। नाउ यू कैन सी द एंट्री फॉर द फास्ट इथरनेट 0/3, बिकॉज मैंने PC1 पे जाके एक पिंग किया है PC0 के लिए, मींस इस IP एड्रेस के लिए। बट पिंग जब आप करते हो तो पिंग इज नॉट अ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, इट्स अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, 4 ICMP पैकेट आप सेंड करते हो तो 4 आपको ICMP एको रिस्पॉन्स रिसीव ही होते हैं। तो मींस यहाँ से फ्रेम आपका जो है गया होगा स्विच के पास, स्विच ने PC1 के मैक एड्रेस को सेव कर लिया होगा, देन इसको रिसीव हुआ होगा, यहाँ से इसने फिर से रिप्लाई सेंड किया होगा। जैसे ही PC0 ने रिप्लाई सेंड किया होगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे फास्ट 0/2 पे यहाँ पे भी उसने सेव कर लिया होगा। मींस सब दोनों के जो है एंट्रीज आपको सेव मिलेंगी टेबल में। यहाँ पे देखो, इसके पहले हमने चेक किया था, वी हैव ओनली 1 एंट्री हियर। नाउ आई विल चेक अगेन। सी, देयर आर 2 more entries here, फास्ट इथरनेट 0/3 एंड 0/2। यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो, दिस इज फास्ट इथरनेट 0/3, इट्स फॉर PC1, एंड दिस इज फास्ट इथरनेट 0/2, इट्स फॉर PC0। और आप एक और चीज नोटिस कर रहे होगे कि 0/4 एंड 5 का कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है, बिकॉज मैंने यहाँ से 0/4 और 5 के जो PCs हैं, PC2 एंड PC3, इनके लिए कोई भी कम्युनिकेशन भी मैंने एस्टेब्लिश नहीं किया है, कोई भी IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं किए हैं, और इन्होंने भी किसी भी तरह का इनिशिएशन कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट नहीं किया है। So that's why they are not in the table. So that's how the MAC address got in the table, and that's how the switch learns the MAC address. Okay, so I hope you get that. Let me go to the PPT here. And next we will see the ARP protocol. एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये क्या करता है कि ये टेबल होती है जो कि राउटर पे क्रिएटेड होती है। ओके, लाइक इफ आई ड्रॉ सिनेरियो हियर, दीज आर द PCs। जो आपका राउटर होता है वो लेयर 3 डिवाइस है, जो आपके स्विच होते हैं वो लेयर 2 डिवाइस होते हैं, 2 and 3। लेयर 3 मींस इट वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे वर्क करने का कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये IP बेस्ड डिवाइस होती, मींस IP के साथ में वर्क करती, बट दिस switch works at layer 2, means it works on the MAC address. Okay, बट स्विच के पास तो केवल MAC एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। सपोज कीजिए कि आपका ये जो नेटवर्क है ये कहीं पर्टिकुलरली किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड इस तरह से है, और यहाँ पे
कुछ मैं आईपी दे देता हूँ सिंपल एग्जांपल में 192.168.0.3 दिस इज द आईपी फॉर दिस पीसी एंड यहाँ पे कोई जो है डिवाइस है जो इसको पिंग करना चाहता है, ठीक है, लाइक 10.0.0.1। सो अगर ये पीसी पिंग करता है इस पर्टिकुलर पीसी को, सो यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको बताना चाह रहा हूँ कि एआरपी टेबल कहाँ पे कैसे काम आता है। सो जनरली आपका जो स्विच है वो मैक बेस्ड होता है, इसके पास कोई भी आईपी की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो जो ये रिक्वेस्ट आती है पीसी से इस राउटर के पास, राउटर सेंड करता है इसको यहाँ पे, राउटर के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं वो मैक एड्रेस नहीं होता, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है आईपी बेस्ड। मींस वो इस आईपी से पिंग कर रहा होगा, जैसे अभी हम लोगों ने पिंग किया था इन द पैकेट ट्रेसर, ठीक है, तो आईपी बेस्ड होता है। तो अगर इस रिक्वेस्ट को जो राउटर के पास रिसीव हुई है उसी रिक्वेस्ट को सिंपली वो सेंड कर देता है मैक इसके पास, स्विच के पास, तो क्या इस स्विच इसको प्रॉपर्ली सेंड कर पाएगा इस पर्टिकुलर पोर्ट पे इस आईपी एड्रेस के लिए? एनीवन? नो सर, because it does not know the concept of IP. So it generally does, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव होती है राउटर के पास, सो राउटर हैव अ ARP टेबल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल, और उस टेबल में क्या सेव होते हैं, उस टेबल में सेव होता है फ्रॉम दिस साइड IP एड्रेस एंड दिस साइड मैक एड्रेस। ये भी टोटल आपके मैक एड्रेस की तरह ही होता है, ये भी इनिशियली एम्प्टी होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे ये टेबल भी फिल्ड होती रहती है इस तरह से, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे पहले सिनेरियो समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर इसने जो है रिक्वेस्ट किया होगा, इस राउटर पे रिक्वेस्ट आई होगी, इसने वापस से सेंड किया होगा इसको इस राउटर पे, सो इसने आईपी एड्रेस का डेस्टिनेशन देखा होगा, दिस वाज 192.168.0.3। इस एड्रेस को इसने मैच किया होगा अपने एआरपी टेबल में जो कि राउटर पे सेव होती है। यहाँ पे देखा होगा उसने उसका मैक एड्रेस, सो इसको जो है मैक एड्रेस के टेबल में मिल गया होगा। देन इसने क्या किया होगा, दोबारा से पैकेट को रीफ्रेम किया होगा जिसमें उसका जो डेस्टिनेशन होगा वो मैक एड्रेस बेस्ड होगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, स्विच देखता है कि इसका जो मैक एड्रेस है वो इस पर्टिकुलर पीसी का है, तुरंत वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड कर देता है। इसको कोई भी आइडिया नहीं होता कि किस आईपी के लिए आ रहा है, और ये डिवाइस लेयर 2 पे वर्क करती है, सो it will only work with the MAC address. Okay, so there is one more condition. Let me draw here. These are the basic concept. You have to understand that. Okay, and let me draw this scenario again. Suppose कीजिए कि this is the PC and it has the address of 10.1.1.1 2 कर लीजिए इसको, ठीक है। This is the 10.1.1.3 and this is the .4 at the last. These are the 3 PCs, और आप PC 1 से PC 2 या PC 3 को किसी को पिंग करते हो, ठीक है, आप टेस्ट करना चाहते हो कि इज इट कनेक्टेड टू माई नेटवर्क। सो रिक्वेस्ट जनरेट होती है यहाँ से, और रिक्वेस्ट में आप क्या लिखते हो, यू राइट लाइक पिंग एंड देन द आईपी एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ओके, सो जनरली यू आर नॉट गिविंग द मैक एड्रेस, यू आर गिविंग द आईपी एड्रेस। और अगर आप इस इन पीसीज को अगर आपने आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो ये जरूर फाइंड कर लेगी आपकी जो है रिक्वेस्ट को। सो जब रिक्वेस्ट जनरेट करता है पीसी तो रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये तुरंत रिक्वेस्ट सेंड करता है राउटर को, बिकॉज इट डज नॉट नो अबाउट द आईपी एड्रेस। सो राउटर पे इंफॉर्मेशन आती है तो राउटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ में जो मैक एड्रेस उसके एआरपी टेबल में होता है उसको मैप करता है मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस से मैप करने के बाद वापस रिक्वेस्ट आती है स्विच के पास, जिसमें राउटर उसको रिफ्रेम कर देता है डेस्टिनेशन के लिए कि अब आपको इस पर्टिकुलर आईपी पे नहीं जाना है, अब इसके मैक एड्रेस पे आपको जाना है। सो यहाँ पे स्विच के पास इंफॉर्मेशन आती है, स्विच जनरली उसको सेंड कर देता है इस पर्टिकुलर पीसी को जिसको आपने पिंग किया था, ठीक है। सपोज वी आर डूइंग द पिंग फॉर द PC2 लाइक 10.1.1.3। सो पहले रिक्वेस्ट जाएगी स्विच के पास, स्विच भेजेगा राउटर को, राउटर अपने आरपी टेबल में रिक्वेस्ट को मैच करेगा, मैच करने के बाद वो देखेगा कि 10.1.1.3 के साथ में जो उसका मैक एड्रेस है वो उसके टेबल में मिल जाएगा उसको, फिर उसको मैक एड्रेस को वापस से मैक एड्रेस का डेस्टिनेशन बना के सेंड करेगा स्विच को, स्विच क्या करेगा वापस से इस पीसी को इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा। सो दैट्स हाउ दे cooperate with the MAC address table and ARP table.
So this is the general example, and let me show you the logic here. अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, वेट, दिस इज द राउटर, आप ओपन करते हो जनरली ऐसे ही ओपन होता है CLI. ओके, सो लेट मी चेक द ARP टेबल. सी, इनिशियली हमारी टेबल एम्प्टी होती है, बट हमने पहले ही कुछ जो है डिवाइसेस को ऐड करके पिंग कर लिया था. ओके, जब आपको याद हो, ये दो डिवाइसेस अभी एडेड नहीं है. दिस इज द 192.168.0.4 और 0.5. तो यहाँ पे आपको उसकी एंट्री मिलेगी भी नहीं. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज फॉर द 01, दिस इज फॉर द 02. ओके, राउटर 3 इसकी एंट्री नहीं है आपके पास, बिकॉज हमने इसको ऐड नहीं किया है. और ये देखिए, इस एंट्री के साथ में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन और भी हैं, लाइक दिस इज द प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो वर्क कर रहा है. दिस इज द एड्रेस फॉर द IP एड्रेस, और ये इसका हार्डवेयर एड्रेस है जो कि यहाँ पे सेव है उसके साथ में. ठीक है, और ये उसका जो है प्रोटोकॉल टाइप है, और ये उसके इंटरफेस है जो कि सेव्ड है वहाँ पे. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस PC को भी IP एड्रेस प्रोवाइड कर दूँ और मैं वहाँ से पिंग करता हूँ, सो लेट्स सी द रेस्पॉन्स हियर. This is the 192.168.0.4, and default gateway is 192.168.0.1. Now we are good to go. And मैं यहाँ से मैं पिंग कर लेता हूँ किसी भी पर्टिकुलर PC को. सपोज कीजिए कि मैंने पिंग कर लिया PC1 को, 03 को. सी, आपकी जो एंट्री है यहाँ पे PC2 का जो मैक एड्रेस का टेबल का वहाँ पे ARP में एंट्री होगी, वो देखिए दोबारा से हम चेक करेंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे. लेट्स सी द टेबल अगेन. सो ARP हियर, you can see the entry here. Okay, and जिस इस तरह से आप कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हो, उस तरह से एंट्रीज जो है वहाँ पे फिल होती जाती हैं. ओके, और मैक एड्रेस टेबल आपकी स्विच पे होती है और ARP टेबल आपके राउटर्स पे होते हैं, और इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो. और जैसे जैसे कम्युनिकेशन इनिशिएट होते हैं, वैसे वैसे कंडीशंस में वो क्या करते हैं, फिर डायनामिकली चेंज होते रहते हैं. ओके, सो दीज आर द सम टर्म्स लाइक ARP केस. ठीक है, ARP केस एक तरह का सोर्स होता है जो कि स्टोर होता है टेबल में फॉर द रेफरेंसेस. ठीक है, और आपका ARP केस टाइम आउट होता है, कितने टाइम तक आपका जो है एंट्री उस ARP टेबल में जो है रहेगा क्रिएटेड. और ARP रिक्वेस्ट और रिस्पांस आपका होता है, जिसमें डिवाइसेस जो है ब्रॉडकास्ट करती हैं इंफॉर्मेशन जो है क्रिएट करने के लिए, टेबल्स वगैरह के लिए. अगर आपको सपोज कीजिए कि राउटर के पास कोई रिक्वेस्ट आती है बाहर से और वो मैच करता है IP एड्रेस को मैक एड्रेस से, बट वो फाइंड नहीं कर पाता उस IP एड्रेस उस मैक एड्रेस के साथ में जो मैच कर रहे हैं एंट्री को, तो क्या करेगा, फिर वो ब्रॉडकास्ट कर देगा. स्विच को क्या करेगा, फिर ब्रॉडकास्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को सेंड कर देगा. सो एंड देन वी हैव द ARP रेस्पॉन्स एंड रिप्लाई. जैसे जैसे ही वो इनिशिएट होती हैं एंट्रीज, उसके साथ में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों कंडीशंस एक साथ में वर्क कर रहे होते हैं. सो दैट्स अबाउट द ARP. And there are two cases for the ARP. For the case one, if we are doing the intra-network things, means we are pinging in the same LAN. Like this is the switch, this is the router, these are the PCs. और मैं इस PC से इस PC को या इस पर्टिकुलर PC को ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ. मैं इस नेटवर्क के बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के किसी दूसरी डिवाइस को यहाँ से पिंग नहीं कर रहा हूँ. सो दैट विल बी द केस वन. वहाँ पे क्या करेगा, ARP टेबल पे रिक्वेस्ट जाएगी आपकी पिंग करने के लिए, और वहाँ से ये आपको जो है वापस से रिस्पॉन्स कर देगा स्विच को, और यहाँ पे आपको दूसरे PC के लिए रिस्पॉन्स मिल जाएगा. बट इन केस टू में अगर आप चाहते हो कि किसी दूसरे नेटवर्क को एक्सेस कर पाओ उस सिनेरियो में, तो वहाँ पे क्या होगा, पहले जाएगी इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल के पास में. ठीक है, वहाँ पे सेंडर जो है इन्फॉर्मेशन देखेगा, उसके बाद IP एड्रेस फाइंड करेगा नेक्स्ट होप के कि कैसे हम जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो आप. ठीक है, और वहां पहुंचने के बाद उसके राउटर पे जाके ARP टेबल को देखेगा कि आप राउटर के उस फिजिकल एड्रेस पे कैसे पहुंच सकते हो, सॉरी डिवाइस के फिजिकल एड्रेस पे कैसे पहुंच सकते हो. अगर सिंपल एग्जांपल में बात करें तो अगर आप दो PC ऐड करते हो A and B लाइक दिस,
ठीक है। और यहाँ पे देखो जनरली जब आपका कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं होता है तो आप इस तरह से देखोगे नो एंट्री फाउंड, और अगर आप उन दोनों को आपस में पिंग कर देते हो, पिंग करने के बाद आपको रिस्पॉन्स इस तरह से आता है, देन यू कैन ऑल्सो चेक द सेम कमांड एंड नाउ यू कैन फाइंड द entries here for the ARP table. So that's all about the ARP and MAC address table. Now we'll see the DSCP. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, DSCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol, provides the facility to give the IP address dynamically to the devices. Suppose I am at this particular network, और राउटर पे मैंने यहाँ पे किसी तरह का DSCP अभी जो है इनेबल नहीं किया है सर्विस को, तो यहाँ पे मैं मैनुअली जाके 1 by 1 पीसीस में आईपी को एंटर कर रहा था। अगर आपने देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन में आया था, यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स को ऐड किया था। ठीक है, दीज आर द बेसिक डिटेल्स लाइक डीएनएस सर्वर, डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क एंड द आईपी एड्रेस फॉर दिस डिवाइस। बट देयर इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन हियर, यू कैन सी द DSCP। तो अगर आपने DSCP सर्वर को अपने राउटर पे इनेबल किया हुआ है या इंडिविजुअली आपने DSCP के लिए एक डेडिकेटेड राउटर जो है रखा हुआ है इस तरह से, तो वहां पे आपको इस तरह से बस क्लिक करना होता है DSCP सर्विसेज पे। अगर मैंने यहाँ पे DSCP सर्विसेज इनेबल की होती तो यहाँ पे रेस्पॉन्स अभी तक आ चुका होता। देखो यहाँ पे फेल हो चुका है, मीन्स अभी मैंने DSCP की सर्विसेज को यहाँ पे असाइन नहीं किया हुआ है। एंड DSCP के बारे में सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, यू कैन आइदर कॉन्फ़िगर द DSCP टू योर राउटर। राउटर के पास भी फैसिलिटीज होती हैं, आप वहाँ पे भी DSCP कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो एड द सर्वर हियर फॉर द डेडिकेटेड DSCP सर्वर। और सर्वर के पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इफ आई टॉक अबाउट द सर्विसेज ऑफ द सर्वर, here you can see the services. For the web browsing we have HTTP. For the DSCP that we are talking about earlier, we can do the things and configure things here. Okay, and for the backup we use TFTP. For the IP version 6 we also have the DSCP version 6 here. For the domain name system, for the system log generation, for the AAA authentication, for the network time protocol, for email, for FTP, for IoT and all the things, for the wireless services, for the virtual management. So इस तरह के सर्विसेज ऑफर करता है आपका जो है सर्वर। बट आप DSCP के स्पेशली अगर आप सर्वर ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप वो सर्विसेज आप राउटर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और वो सर्विसेज कैसे कॉन्फ़िगर होती हैं, लेट मी शो यू इन लिटिल डिटेल्स। जनरली जब आपके पास कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता डिवाइस के पास, तो वो क्या करते हैं, उनके पास कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता, कोई मास्क नहीं होता, कोई डिफॉल्ट राउटर का एड्रेस नहीं होता और कोई डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं होता। बट तो वहां पे हमारा चैलेंज क्या होता है, पहले हमें डिस्कवर करना है कि इस नेटवर्क में क्या कोई डीएसपी। प्लीज म्यूट, हेलो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। First, we have to do two things. First, we have to discover the DSCP server. Is it available in our network? अगर कोई DSCP server है तो हम broadcast perform करके उसको discover करेंगे. Then we have to send the request to lease the IP version 4 addresses. अगर हैं तो उनको request करके आपको dynamically IP assign कराना होगा. So what are the processes? Generally, it works with the 4 different steps. We call it DORA. डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। सो 4 स्टेप्स में आपके प्रोसेस होते हैं। डिस्कवर में क्या होता है कि क्लाइंट जो है DSCP सर्वर को एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम सेंड करता है। अगर वो सर्वर वहाँ पे अवेलेबल होता है तो वो जो है वापस से इसको सर्वर रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने के बाद वो डिवाइस पर्टिकुलर उसको रिक्वेस्ट करती है IP एड्रेस को लीज करने के लिए। एंड आफ्टर दैट जब वो IP एड्रेस लीज कर देता है तो सर्वर वापस से डिवाइस क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि now you have been given this particular IP address and DNS server IP addresses and default gateway and all. So generally what the DSCP provide, IP address, mask, default router address and server DNS server IP address. These are the things that the DSCP provides and these are the steps that it works: discover, offer, request and acknowledgement. And we have the DSCP client here.
उसके पास सबसे ज़्यादा जो यूनिक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर डिवाइस किसी नेटवर्क में एडेड है इस तरह से, और उसके पास कोई भी आपने आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, किसी भी तरह की डिटेल्स आपने नहीं वहाँ पे पुट नहीं किया हुआ है, तो उस सिनेरियो में कैसे ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा बाकी सारी डिवाइसेस को? दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, और रिक्वेस्ट करने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स आता भी है तो इसके पास तो कोई एड्रेस है नहीं अभी इनिशियली, जब तक डीएससीपी प्रोवाइड कर नहीं देता है। तो डीएससीपी के लिए हमारे पास दो स्पेशल एड्रेसेस यूज होते हैं। दीज आर द 0000 एंड 255 255 255 एंड 255। दीज आर द एड्रेसेस। ये क्या करता है, जब भी कोई पीसी के पास इनिशियली कोई भी एड्रेस अवेलेबल नहीं होता, उस सिनेरियो में वो यूज करता है 0/0.0.0.0 दिस एड्रेस, जिसके पास अभी कोई भी इनिशियली आईपी एड्रेस नहीं होती। तो इस एड्रेस से वो रिक्वेस्ट करता है, और जब भी सर्वर को रिस्पॉन्ड करना होता है तो सर्वर रिस्पॉन्ड करता है इस एड्रेस पे। दिस इज द आईपी एड्रेस फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये जो है सर्वर्स लोकल ब्रॉडकास्ट करते हैं उन डिवाइसेस पे कनेक्ट होने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, एंड दैट्स द सिनेरियो फॉर द डीएचसीपी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द पीसीए ट्राइंग टू गेट द एक्सेस फॉर द डीएचसीपी सर्विसेज। दिस इज द राउटर, दिस इज द सर्वर। ये आपका सर्वर का आईपी एड्रेस है, पहले से गिवन है 172.16.1.1 1.11। एंड पहले क्या करता है, पहले ए करता है डिस्कवर, डिस्कवर में सेंड करता है इन्फॉर्मेशन। किसको सेंड करता है? ब्रॉडकास्ट करता है 255.255.255.255। एंड इसका जो ओरिजिन एड्रेस होता है वो होता है 0000, बिकॉज इसके पास कोई भी अवेलेबल एड्रेस नहीं है। वापस से क्या करता है, ये इसे रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, सर्वर देखेगा इस एड्रेस को, क्योंकि ये तो सबके पास इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी बिकॉज इट्स ब्रॉडकास्टिंग। तो वापस से देखेगा, तो वापस से ये अपनी पर्टिकुलर एड्रेस से दोबारा से ब्रॉडकास्ट करेगा उस नेटवर्क में। तो वो ऑफर पहुंचेगा उस डिवाइस के पास में। ठीक है, फिर वो उसे रिक्वेस्ट करेगा जो है आईपी एड्रेस की सर्विसेज को लीज करने के लिए। रिक्वेस्ट करने के बाद वही जो है डीएचसीपी सर्वर उसको एक्सेस देगा। एक्सेस देने के बाद तुरंत डिवाइस को सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ कनेक्शन फॉर द डीएचसीपी सर्विसेज। और ऐसा नहीं होता कि जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दी हैं वो परमानेंट होती हैं, इनके भी टाइम आउट होते हैं। लाइक 8 आवर्स 12 आवर्स आप सेट कर सकते हो कितने टाइम तक वो जो है इनको देना है एक्सेस। उसके बाद वापस से रिमूव कर लेना है, दोबारा जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तब उनको एक्सेस देना है। बिकॉज अगर आप वाईफाई सर्विसेज में देखो तो बहुत सारे पीसीज आपके जो है कनेक्टेड होते हैं, देन वो रिमूव हो जाते हैं। अगर वो पर्टिकुलर जो है परमानेंट एंट्री हो जाएगी वहाँ पे, तो डीएचसीपी के पास भी लिमिटेड पूल होता है। ठीक है, पूल होता है मीन्स लिमिटेड रेंज होती है, उसी रेंज में से उनको डायनामिकली एड्रेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर इस तरह से वो परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड करता जाएगा एवरी इंडिविजुअल यूजर को, और उसे वो रिवॉक नहीं करेगा, उसे दोबारा से वो रीयूज नहीं करेगा विद सर्टेन टाइम, तो उसके एड्रेसेस जो है एंड हो जाएंगे। सो इन सिनेरियोज में क्या करता है, टेम्परेरी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द सम सर्टेन टाइम, और उसके बाद वो रिवॉक कर लेता है, दोबारा से ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर से वो जो है एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे आपका फोन होता है, आप किसी ब्रॉडबैंड सर्विसेज से कनेक्टेड हो, तो आप देखते हो कि वहाँ पे आपको डायनामिकली आईपी मिलती है, आप जाके अबाउट फोन वगैरह में देख सकते हो आईपी। दोबारा से आप अपना नेटवर्क ऑफ करते हो, ऑफ करके दोबारा से कनेक्ट होते हो, तो जो आपको आईपी पहले मिली होती है वो सेम आईपी आपकी दोबारा नहीं होती, वो चेंज हो जाती है, बिकॉज वो आईपी किसी और ने दोबारा से रिक्वेस्ट कर ली और आपको दोबारा से दूसरी आईपी दी गई। ठीक है, इस तरह से वो वहाँ पे भी डीएचसीपी वर्क हो रहा होता है, क्योंकि जनरली जो डिवाइसेस होती हैं उनमें डीएचसीपी पहले से इनेबल्ड होता है, जैसे आपके एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जो घरों में लगे होते हैं फॉर द ब्रॉडबैंड सर्विसेज एंड ऑल। Okay, so that's how we deal with the DSCP services. And there is one another term here like IP helper address. ये क्या करता है कि अभी तक ये जो सारी आप सर्विसेज देख पा रहे थे, ये किसी पर्टिकुलर नेटवर्क की थी। ठीक है, लाइक ये आपके एक सिंगल नेटवर्क के जो है इंटरनल कम्युनिकेशंस हो रहे थे, इसमें इस नेटवर्क का कोई पार्ट नहीं था। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर लगा रखा है तो इस पर्टिकुलर डिवाइस को आप आईपी जो है एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकते विद दिस सर्वर। यू कैन आल्सो प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस टू दिस नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क्स। कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ आईपी हेल्पर एड्रेस। ये क्या करता है, एक तरह का एड्रेस होता है जो कि हम जनरली राउटर के इंटरफेस को असाइन कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, दिस इज द सिनेरियो फॉर द आईपी हेल्पर एड्रेस। यहाँ पे देखो आपका जो सर्वर है वो इस राउटर के इस पर्टिकुलर
एरिया में ये वाला नेटवर्क है और यहाँ पे ये सर्वर लगा हुआ है जो कि DHCP सर्वर है जिसका IP एड्रेस है 172.16.2.11। ओके, बट इसका जो राउटर के इस पर्टिकुलर नेटवर्क का जो पीसी है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इस सर्वर से IP लीज करने के लिए। तो पहले क्या करेगा, पहले ये सिंपली ब्रॉडकास्ट करेगा जैसे उस सिनेरियो में हुआ था। और कहाँ से ब्रॉडकास्ट करेगा, 0000 से, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी IP एड्रेस फॉर देयर इनिशियल ओरिजिन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इंटरफेस पे ये वाला एड्रेस हम असाइन कर देते हैं राउटर के। ये वाला जो एड्रेस होता है वो इस पर्टिकुलर सर्वर का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव होती है इस पर्टिकुलर एंड पे राउटर के। तो इन्फॉर्मेशन जैसे रिसीव होती है तो ये वाला पैकेट जो है डिस्कवर का यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद इस एड्रेस पे वो रिक्वेस्ट चला जाता है और यहाँ देखो डेस्टिनेशन चेंज हो गई है। पहले ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जैसे ही वो जो है इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ रिक्वेस्ट यहाँ पे चेंज हो गया। और कहाँ से आ रहा है ये, 172.16.1.1 मीन्स दिस इंटरफेस से। अब किसी डिवाइस से नहीं आ रहा है, इस इंटरफेस से आ रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है और ये DHCP सर्वर से रिसीव करेगा एंड नेक्स्ट अब ये रेस्पॉन्स करेगा। रेस्पॉन्स जब करता है तो ये अपने IP के साथ में रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है, फ्रॉम दिस एड्रेस टू दिस एड्रेस। अभी इसको नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है, इसको ये पता है कि ये राउटर का ये वाला इंटरफेस जो है, इस इंटरफेस के नेटवर्क से आपको रिक्वेस्ट आई थी और वहां पे आपको ऑफर करना है, रेस्पॉन्स करना है। यहाँ पे ऑफर आता है, जैसे ही ऑफर इस एंड पे पहुंचता है राउटर के, तो तुरंत वापस जैसे उसने पहले चेंज किया था उसने दोबारा चेंज कर दिया ऑफर। नाउ इट इज ब्रॉडकास्टिंग, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है बिकॉज राउटर को नहीं पता है कि इसका पर्टिकुलर IP एड्रेस क्या है, क्योंकि अभी तक इसको दिया नहीं गया IP एड्रेस। तो जिसने भी रिक्वेस्ट किया होगा उसको वो रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो ऑफर तुरंत चेंज कर देता है यहाँ से। और ये कहाँ से आ रहा होता है, 172.16.2.11 से। तो इसी तरह से वो रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, देन ये लास्ट में सेंड कर देगा अपना एक्नॉलेजमेंट वगैरह और इसको IP एड्रेस मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ वी डू द DHCP सर्विस इन डिफरेंट नेटवर्क। जरूरी नहीं कि आपका जो है सर्वर सिंगल नेटवर्क में हो, ये जो है रिमोट नेटवर्क में भी अवेलेबल हो सकते हैं। तब भी आप IP हेल्पर एड्रेस की हेल्प से आप उसको फाइंड कर सकते हो रिक्वेस्ट। और इसको असाइन करने से क्या होता है कि राउटर को पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड करनी है, कहाँ पे रिसीव करना है। ठीक है, ये क्या करता है, जस्ट फॉरवर्ड कर देता है उस रिक्वेस्ट को। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इफ यू हैव गाइस एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। Now you guys can ask questions. Good evening, sir. So this is Priya. Yes. Yes. Discover and offer part of DHCP. Yes. Say your question again. Soumya Can Mohanty. you repeat it? Discover. Yes, sir. Can you repeat the discover part of DHCP server? Okay. Discover and acknowledgement. Okay. So I cannot repeat the whole scenario here, but you can see here in the figure. जब आपका IP हेल्पर एड्रेस यूज हो रहा होता है इस पर्टिकुलर एंड पे, ओके, तो जो भी रिक्वेस्ट कर रहा होता है ये पर्टिकुलर पीसी इस नेटवर्क का या दूसरा पीसी जो जिसके पास अभी इनिशियली कोई भी IP एड्रेस नहीं होता, तो तुरंत क्या करता है, IP हेल्पर एड्रेस की हेल्प से इसे क्या करता है, इसे रीफॉरवर्ड कर देता है इस पर्टिकुलर सर्वर पे। क्योंकि यहाँ पे हम असाइन करके इसको बता देते हैं IP हेल्पर एड्रेस के फॉर्म में कि यहाँ पे जो आपका जो आपका DHCP सर्वर है वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे है। तो राउटर को अगर आप IP हेल्पर एड्रेस असाइन कर देते हो इस तरह से, ठीक है, तो उसको आइडिया हो जाता है कि हमें क्या करना है, उसका वर्क क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्कवर करने के लिए जब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आता है तो ये तो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है बिकॉज इट्स अ 255.255.255.255 एड्रेस। इसका मतलब ब्रॉडकास्टिंग है, इट्स अ लोकल ब्रॉडकास्ट फॉर द डिवाइसेस दैट आर इन द नेटवर्क। इसके बाहर रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, इसी नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होंगी। और इसी नेटवर्क में आपका राउटर भी आता है, ये वाला इंटरफेस। तो यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है वहाँ पे हमने पहले क्या लगा रखा होता है, IP हेल्पर एड्रेस हमने सेव कर रखा होता है। तो ये राउटर जब भी रिसीव करता है इस तरह का कोई भी एड्रेस, तुरंत उसे रिमोडिफाई करता है। रिमोडिफाई करने के बाद जहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही होती है ब्रॉडकास्ट के लिए, उसे चेंज कर देता है, चेंज करके उसे लगा देता है इस पर्टिकुलर DHCP सर्वर के एड्रेस के साथ में, और वो इन्फॉर्मेशन मूव हो जाती है DHCP सर्वर के पास में। वापस से दूसरे फिगर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब वो रेस्पॉन्स कर रहा होता है जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट की थी, तो सर्विसेज ऑफर कर रहा होता है। तो जैसे ही
यहाँ पे जब सर्वर को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सोचता है कि ये 16.1.1 से आया, मिस इस पर्टिकुलर इंटरफेस से आया। बट जैसे इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है राउटर के पास में, तुरंत वापस चेंज कर देता है, जैसे लास्ट टाइम चेंज किया था उसने किया, वापस क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, क्योंकि ये भी राउटर के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर पीसी का एड्रेस क्या है, इसे हम कहाँ पे भेजें। तो क्या करता है, ये वापस से ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो जिस भी डिवाइस ने इन्फॉर्मेशन सेंड की होती है उसको वो रिसीव कर लेता है, बाकी सारे फ्रेम डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ दे गेट द DSCP सर्विसेज। सर डीएचसीपी का काम होता है जिनका आईपी एड्रेस नहीं है इनको प्रोवाइड करना। Yes, yes. Rana, you can ask your questions. Good evening, sir. Sir, Yes, yes. my question was like MAC एड्रेस तो चेंज नहीं होता है, वो तो डिवाइस का जो है फिक्स्ड है ना? Yes, yes. तो जो आईपी एड्रेस है वो हम लोग को डायनामिकली एलोकेट किया जाता है। तो अगर मुझे किसी रिमोट जो मेरे नेटवर्क पे नहीं है उनका आईपी एड्रेस 192 वाले उसमें नहीं चलेगा, वो तो हमारा प्राइवेट एड्रेस में चल रहा है 192.168। We are just seeing the example here. अगर आप उस तरह से बात करते हो तो उस सिनेरियो में हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करते हैं। तो पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे होता है, वो मतलब वो भी फिक्स्ड होता है या वो एलोकेट किया जाता है हमारा? नहीं, प्राइवेट आईपी एड्रेस की कुछ रेंज फिक्स होती है, बाकी जो बचे हुए एड्रेस होते हैं ABC के, वो पब्लिकली आप यूज कर सकते हो। नहीं, मैं सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मेरा डिवाइस है तो क्या इसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस पे एलोकेट किया गया है? Yes, yes. और वो फिक्स्ड है या वो भी डायनामिक रहता है? डायनामिक रहता है, क्योंकि आपके एंड पॉइंट पे जो डिवाइसेस होती हैं जैसे ISPs वगैरह हैं, तो आप जितनी बार आप चेंज करते हो अपने नेटवर्क को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखोगे जाके अपने अबाउट फोन वगैरह में कि आपको डिफरेंट आईपी एड्रेसेस बार बार एलोकेट किए जा रहे हैं। आपको सेम आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा आप डिफरेंट टाइम पे कनेक्ट होगे तो, बिकॉज देयर आर सेवरल इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर आप वाली आईपी किसी और को दे दी गई तो आपको नहीं मिल सकती, बिकॉज इट्स अ डायनामिक एलोकेशन टू द पर्टिकुलर डिवाइसेस। यस सर। इट कैन बी वायर्ड एंड वायरलेस टू। वायरलेस सर्विसेज में वैसा ही होता है, जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का ब्रॉडबैंड लिया हुआ अपने घरों में जो लगवाते हो, जैसे एयरटेल का हो गया, जियो फाइबर एंड ऑल, तो उनके पास भी एक्सेस पॉइंट्स में पहले से ही DSCP सर्विसेज इनेबल्ड होती हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको क्लिक करना पड़ता है नेटवर्क पे, आपको पिन ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर आईपी वो एलोकेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी पड़ती। बट आपने देखा होगा पैकेट ट्रेसर में कि मैं यहाँ पे इंडिविजुअली जाके 1 by 1 डिटेल्स को पुट कर रहा था फॉर द कम्युनिकेशन। यस तो सर। वो ना करने के लिए हम लोग DSCP यूज करते हैं, बिकॉज जब आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, लाइक 1000 PC 2000 PCs होंगे, तो आप कहाँ कहाँ पे जाके आईपीज को पुट करोगे इस तरह से। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएट द DSCP सर्वर। यस सर। And if I talk about the organization or company, like a company have 3 or 4 branch in the same city, so उसमें क्या करते हैं कि वो एक किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में DSCP सर्वर जो है इनिशिएट कर देते हैं, और बाकी सारे ब्रांचेस के जो PCs हैं वो इसी पर्टिकुलर सर्वर की हेल्प से उनके PCs को भी IP एलोकेट हो रही होती है। So that's how we do the remote allocation. Anything else? तो सर जैसे मेरे को आपके पीसी से मान लो कनेक्ट करना है, तो मुझे आपका आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा? वो डायनामिकली एलोकेट हो रहा है आपको भी, मेरे को? It based on the ISP. You don't have to worry about that. क्या? ये मैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। अगर आप ISP से कनेक्ट होते हो तो आपके एंड पे आपको डायनामिकली एलोकेट होते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो वो किसी पर्टिकुलर एक नेटवर्क को यूज कर रहे होंगे, तो Yes, वो sir. उनका एक अपना इंटरनेट होता है एक तरह का। यस सर। तो उस सिनेरियो में हम लोग रिमोट जो है DSCP सर्वर्स यूज करते हैं। आप पब्लिक नेटवर्क में इस तरह से यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आप अपने एंड पे आप डिफरेंट टाइम पे कनेक्ट होते हो नेटवर्क से या वाईफाई सर्विसेज से, तो आपको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आईपी सर्विसेज आपको आईपी एड्रेस मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें कम्युनिकेशन का कोई भी इशू नहीं होता, और ये सारे जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहे होते हैं ये सारे ISP बेस्ड होते हैं। ठीक है, नहीं सर, और पहले से मैं सवाल हाँ ऐसे कर रहा था कि जैसे हम लोग, अब हो सकता है ये चीज एग्जिस्ट ना करती हो, पर जैसे मूवीज वगैरह में देख के थोड़ा कुछ सवाल ऐसे आते हैं सर कि जैसे मैं यहाँ बैठ के अगर मान लो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हैक करने की कोई कोशिश करें, तो उसको वहाँ का एड्रेस कैसे पता चलेगा कि हैक करना है? वो मतलब उसको सोशल इंजीनियरिंग वगैरह करके वो एड्रेस लेना पड़ेगा या कोई और तरीका भी होता है? there are lots of services you can perform on the particular network, but अभी के सिनेरियो में जब आप इस तरह के सेटिंग्स को परफॉर्म करते हो, का यूज होता है सर। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का कॉन्सेप्ट है। यू कैन यूज द सोशल इंजीनियरिंग, यू कैन यूज द स्कैनिंग, यू कैन यूज द इनुमरेशन एंड ऑल द थिंग्स। बहुत सारे टूल्स आपके पास लाइनक्स वगैरह में अवेलेबल होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे टूल्स वर्क करेंगे।
कभी कभी क्या होता है कंपनीज में सारे फ्लॉज पहले से कवर्ड होते हैं, कोई भी वल्नरेबिलिटीज पहले से अवेलेबल नहीं होती, बट Yes, sir. कुछ सर्टेन फ्लॉज की वजह से लाइक नेटवर्क इंजीनियर वहाँ का जो है या सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वहाँ का जो है उसने कोई गलती से कोई एक पोर्ट उसने ओपन रख दिया या उसके वो जो है सबकॉन्शियस में जो है वो नहीं आया, तो उस सिनेरियो में वो वल्नरेबल होगा। अगर आपके हाथ वो मछली लग जाती है, मीन्स आप फिशिंग कर रहे हो एक तरह से, अगर आपके हाथ वो पर्टिकुलर पोर्ट लग जाता है तो यू कैन गेट द लेवरेज आउट ऑफ इट। Yes, sir. ओके, बट नाउ वी आर फेसिंग लाइक जैसे सर ने अभी बताया था प्रीवियस सेशंस में कि वी द करंट कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड ऑल द थिंग्स, दे आर यूजिंग द लेयर्ड फायरवॉल फॉर देयर सिक्योरिटी पर्पसेस। सो आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ेगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। Yes, sir. Okay, so it's very hard to get in the network for any company. Yes, sir. So that's why we do the social engineering things and all, because it's an flaw of the human and error of the human. और इंसान गलती करता ही है, हाँ जी. So that's the thing. And I have the data like मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे भी ऐसे सिनेरियोस थे कि जो 70-60% के जो क्राइटेरियाज होते हैं हैकिंग के, वो आपके सोशल इंजीनियरिंग से ही परफॉर्म होते हैं। लाइक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय है या कोई उसका लेवरेज उसके जो है फ्रेंड या फैमिली से कोई लेवरेज लेके कोई ब्लैकमेल करके उससे क्रेडेंशियल्स ले लेता है इस सिनेरियोज में, और सारी चीजें जो है सिचुएशंस अकर होती हैं उसमें। बट लाइक डम्पस्टर ड्राइविंग है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है अपने जो है जो हार्ड कॉपीज हैं उनको या अपने जो हार्ड ड्राइव्स को जो पुराने हैं उनको सही से जो है कस नहीं करते हैं, तो उससे भी वो जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी पॉसिबल वेज यू कैन डू दैट। Yes, sir. और ये प्रोसेस आपका एक दिन का नहीं होता, इट टेक्स लाइक इयर्स और मंथ्स टू गेट Yes, द sir. इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Thank you, sir. सर मेरा कंफ्यूजन है सर। यस यस। राउटर होगा, इसके बाद स्विच जिसके साथ कनेक्टेड है और Yes. स्विच के साथ कंप्यूटर इसी कनेक्टेड है सर। यस तो सर इसका जो डाटा फ्लो सर रहेगा, तो सर किससे पहले राउटर में आएगा, इसके बाद स्विच में जाएगा, और स्विच क्योंकि से देखिए जो जब आप मैक एड्रेस हाँ मैं होगा वो डायरेक्ट वो जो एएसी में आएगा। देखिए जब आप पिंग करते हो डिवाइस को, तो पिंग में आप क्या लिखते हो? आप पिंग में आईपी एड्रेस लिखते हो, और सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि आईपी एड्रेस के साथ में जो स्विच होता है वर्क नहीं करता। आईपी एड्रेस के साथ में लेयर 3 की डिवाइसेस वर्क करती हैं, दैट इज राउटर। तो जब भी आप पिंग करते हो तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन पहले कहाँ पहुंचती है? पैकेट पहुंचता है आपके पास राउटर के पास। तो राउटर उसे डिसाइड करता है कि इसे जो है नेटवर्क के अंदर रखना है, नेटवर्क के बाहर भेजना है। सो अगर वो देखता है कि आईपी एड्रेस हमारे लोकल नेटवर्क का है, सो इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द स्विच विद द हेल्प ऑफ एआरपी टेबल। वहां पे उसके आईपी एड्रेस के साथ में जो एंट्री होती है मैक एड्रेस की, उसके साथ में मैच करके सेंड कर देता है, और स्विच देखता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई है और मुझे इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, तो वो पीसी को इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। सो दैट्स द बेसिक प्रोसेस ऑफ द एआरपी एंड मैक एड्रेस टेबल। थैंक यू सर। Anything else you guys can ask? हेलो, गुड इवनिंग सर। Yes. सर जो हमारा मोबाइल फोन होता है उसको अगर हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आईपी एड्रेस से और दिखा देता है, लेकिन अगर नहीं करते हैं, मतलब हम अपने पर्सनल डेटा से मतलब उसमें है तो उसमें फिर उस टाइम पे आईपी एड्रेस क्यों शो नहीं करता? That's from the ISP. उनकी सेटिंग्स इस तरह से होती हैं, आप वो देख नहीं पाते फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। लेकिन जिससे भी जैसे हॉटस्पॉट ही लेते हैं हम दूसरे पर्सन से, वो भी तो आईएसपी से ही होता है, फिर उसका फिर हाँ बट हमें आईपी एड्रेस। बट आप जब कोई भी पर्सन हॉटस्पॉट क्रिएट करता है तो वो एक तरह का एक्सेस पॉइंट होता है आपके लिए या किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, तो वहां से वो अपने एंड से एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, वो आईएसपी का आईपी एड्रेस आपको दिख नहीं रहा होता वहां पे। ओके सर और जो आजकल जैसे बग बाउंटी और मतलब बग बाउंटी काफी पॉपुलर है, ओवास्प टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज, तो इनके लिए भी मतलब पहले नेटवर्क करना पड़ता है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है नेटवर्किंग की, तो हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट द ऑल द कॉन्सेप्ट? क्योंकि नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जब आप
पर्टिकुलरली किसी को जो है फाइंड करते हो या पेनिट्रेट करते हो किसी भी सिस्टम को, तो नेटवर्क तो आता ही आता है. नेटवर्क इज अ वेरी इंटीग्रल थिंग्स फॉर योर साइबर सिक्योरिटी आई थिंक. ओके, सो आपको बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए. ओके सर. हाँ, और बेसिक मीन्स आई एम रेफरेंसिंग द प्रैक्टिकल आइडियाज. लाइक जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि ARP टेबल होती है, मैक एड्रेस टेबल होती है. सो इस तरह की चीजें आपके पास आपके जो है कॉन्शियस में होना चाहिए कि कैसे वो चीजें वर्क करती हैं, लॉजिक क्या है. जैसे आप पिंग करते हो तो एक्चुअल में उसके बैकग्राउंड में होता क्या है. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट आपको कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक भी पता होना चाहिए कि जब आप एक्चुअल में हिट करते हो, पिंग करते हो, तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं. ठीक है, सो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू हैव फॉर द ऑल द थिंग्स like bug bounty and OWASP and all the things. ओके सर. Because if you read the book for the networking and all, so you will get the pretty good idea about the concept. So that's that only, but you don't get the practical ideas about that. But if you go for the Cisco certificates like CCNA, CCNP, in that you will get the practical implementation for all of that. Like जैसे मैंने पैकेट ट्रेसर में आपको दिखाया था सारी चीजें, किस तरह से नेटवर्क क्रिएट होता है, इस तरह से मैनेज होता है. इट्स अ पैकेट ट्रेसर, इट्स अ नेटवर्क सिमुलेटर. यहाँ पे आप एक्चुअल डिवाइसेस को यहाँ पे यूज कर सकते हो और अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो है एज ए एक्सपर्ट अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हो. ओके सर. ओके, एनीथिंग एल्स? हेलो सर. यस. तो जैसे कि हम मोबाइल अभी यूज कर रहे हैं, ISP से वो कनेक्टेड है, हम भी Yes. इसका IP एड्रेस भी सर जान सकते हैं ना? You can get the IP addresses. यस सर. कमांड प्रॉम्प्ट में सर IP कॉन्फ़िग लिख देंगे तो चला आएगा? वो आपके पीसी के लिए होता है, आपके फोन में कमांड प्रॉम्प्ट नहीं होता. सो मे बी यू डोंट गेट द IP एड्रेस इन योर फोन. आपके मोबाइल कैसे फोन सर में जान सकते हैं कमांड सर लाइन. मोबाइल में? There is a way. I will discuss that in further sessions. Okay. Anything else? सर Yes. सर जैसे एक पर्सनल एक लैब बनाते हैं खुद की, मतलब जैसे उसमें 4-5 डिवाइसेस हैं, उनको DSCP कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है इसमें. तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें जब हम इंटरनेट अपने आप ही चला जाता है और IP एड्रेस IP कॉन्फ़िग कोई भी कमांड ऐसे डालते हैं तो उसमें IP एड्रेस शो नहीं करता. तो ये किस वजह से होता है? आप किस लैब की बात कर रहे हो? पैकेट ट्रेसर की लैब की बात कर रहे हो या फिर नो for the सर माय कॉलेज लैब, वहाँ पे DSCP से IP एड्रेस प्रोवाइड किए गए हैं, पर कई बार ऐसा होता है अपने आप ही नेटवर्क चला जाता है और उनमें IP एड्रेस मतलब IP कॉन्फ़िग कमांड भी नहीं चलती है, मतलब चल जाती है पर IP एड्रेस शो नहीं होता है. So maybe वहाँ के जो आपके IP के जो असाइनमेंट होते हैं, जो आपको लीज करता है DSCP सर्वर, उसके टाइम जो है कम होगा उसका. ठीक है, मे बी टाइम का इशू होगा. अदरवाइज देयर आर मेनी इश्यूज दैट कैन बी एट द सर्वर. सर सब जो सारे सिस्टम है सबके साथ नहीं ऐसा होता है. कुछ सिस्टम चलते हैं, कुछ सिस्टम नहीं चलते हैं. So that will be a particular issue you have to find out. उसमें कोई भी इशू हो सकता है. वो शायद सर पोर्ट को ब्लॉक किया हुआ, वो So नेटवर्क it's a एडमिनिस्ट्रेशन किया होगा सर. it's a different thing to do. और अगर आप किसी पर्टिकुलर नेटवर्क की बात करते हो तो उसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं. उसमें हो सकता है कि आपके कॉलेज के लिए जो स्टूडेंट्स के जो लैब होते हैं उनमें बहुत सारी चीजें ब्लॉक्ड होती हैं पहले से. यू आर नॉट एबल टू गेट लाइक सोशल मीडिया थिंग्स एंड ऑल. सो that's why maybe you are facing the challenges and the connectivity issues in your network. ओके सर. Okay, so if you have any questions you can ask, otherwise I will wind up the session. थैंक यू सर. Okay, anyone else you can ask, otherwise. हेलो सर. Yes. सर लिनक्स सर्वर और स्काडा सर्वर में टेथरिंग इतने स्लो क्यों रखते हैं जब नेटवर्क स्कैन करता है?
Can you repeat your question? जैसे हम लिनक्स सर्वर को स्कैन करते हैं हाँ, उस टाइम इतनी टेदरिंग या फिर उसमें जैसे पिंग इशू का कोई वो इतना ज्यादा नहीं होता है, बट जब स्काडा सर्वर को स्कैन करते हैं तो उसमें हमें अपनी टेदरिंग स्पीड कम रखनी पड़ती है, क्यों ऐसा? it can be for the security purpose. Okay, जनरली जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो उस तरह से रिक्वेस्ट को ही अलाउ करते हैं अगर उनके सिक्योरिटी पॉइंट्स पे उन्होंने उस तरह से पॉलिसी सेट की हुई तो. सो इट्स अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी डोमेन. Okay, so I will close the session right now. Thank you, guys. See you tomorrow. Thank you, sir. Have a nice day. Okay. Thank you, sir. थैंक यू सर.